Calorimetry. This is new chapter which we are going to start today in physics, and in this chapter we will study about the measurement of heat energy. Okay, and we will know some terms related to heat energy, that is, first of all, heat energy, temperature, heat capacity, specific heat capacity, latent heat capacity. These are some useful terms in this chapter. And this chapter is very important as far as the syllabus is concerned, because you will certainly get a numerical problem from this chapter and a reasoning type questions like why water is used as coolant in car radiators, and such questions are asked from this topic. Okay, so let us define this term calorimetry first. Actually, it is a branch of physics. It is a branch of physics which deals with the measurement of heat energy. This calorimetry is a branch of physics which deals with the measurement of heat energy, that is, the heat content of a body. So before starting this chapter, or we can say before knowing how can we measure the heat energy, we must know about the heat energy and temperature. What is heat energy and what is temperature? So let us define these terms first. Heat energy. You must be familiar with this term, heat energy. It is simply the form of energy which gives us sensation of hotness or coldness. As for example, if you say that a particular body is hot, it means it contains a large amount of heat energy. And in the same way, if you say that a body is cold, then it means that the heat content of body is low or less. Okay, so simply we can define this term. It is a form of energy which gives sensation of hotness or coldness of a body. Okay, now if you suppose a body, then that body is a matter and it is made up of several small particles. Let us draw this. Here I have a body, and this body consists of many small particles. It is a matter. Matter is anything which has mass and occupies space, and it can exist in different forms like solid or liquid or gas. So if I am telling about body, then you must know that I am discussing about the matter. ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग को सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस फील हो रहा है, उसके हीट कंटेंट को अगर हम बात करें तो हमें पहले मैटर की प्रॉपर्टी को समझना होगा कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है. ठीक है, दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज फॉर्म्ड. और मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स, जैसा कि ये दिखाया गया. सेकेंड थिंग इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन. क्या लिखा?
the particles of matter are always in motion. तो अगर ये मोशन में होंगे पार्टिकल्स तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी तो किसी भी बॉडी में होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इस मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं तो उनकी एक पार्टिकुलर पोजीशन है जिस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरी बात, मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं। तो हमेशा अगर मोशन में है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके पास दो तरह का एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है। तो हीट एनर्जी क्या है? Heat energy is the sum total of potential energy and kinetic energy of all the molecules present in a matter. ठीक है। यानी कि किसी भी सबस्टेंस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर ऐड कर दिया जाए तो जो टोटल एनर्जी आएगी उसी को हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी। ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग हीट एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो ये हमारा मॉलिकुलर बेसिस पर डिफिनीशन हो गया हीट एनर्जी का। इट इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सबस्टेंस। ठीक है। तो डिफाइन कर लेते हैं। हीट एनर्जी इज द sum total of potential energy and kinetic energy of all the particles, या हम इसको मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, present in the substance। ठीक है। ये हमारा हीट एनर्जी का डिफिनीशन हो गया। ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बॉडी अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम कहें कि इस डस्टर में कितना हीट एनर्जी है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है उसका जो टोटल सम होगा उसी को हम लोग कहेंगे हीट एनर्जी। ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होगा हीट एनर्जी का? यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी। मैं ये बार बार कहता हूँ कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ें, किसी भी टर्म को आप डिफाइन कर रहे हैं तो पहले डिफाइन करिए, उसके बाद उसकी यूनिट्स जरूर कंसिडर करिए। तो ये एनर्जी है तो जाहिर सी बात है कि इसका यूनिट वही होगा जो कि एनर्जी का है, तो ऐसा ही यूनिट हो जाएगा जूल। ठीक है। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड सो इट इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है ना। अदर यूनिट्स में क्या हो सकता है? अदर यूनिट्स में जो जनरली हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे एंशियंट टाइम से हम कह सकते हैं या बहुत पुराने समय से जिसका यूज किया जाता है वो यूनिट है आपका कैलोरी। ठीक है। बहुत ही कॉमन है ये कैलोरी, स्मॉल लेटर में CAL से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपका क्या है? सो सिंपली वी नो दैट टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि एक बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा
वो ज़्यादा हॉट बॉडी होगा और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो कोल्ड बॉडी होगा। तो टेम्परेचर ये चीज़ क्लियर करता है कि किस बॉडी में हॉटनेस ज़्यादा होगी और किस में कोल्डनेस ज़्यादा होगी, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कहा कि आपके दोस्त का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो कैसे आप डिफाइन करते हैं उसके टेम्परेचर से। इसीलिए टेम्परेचर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग टेम्परेचर से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको डिफाइन करूं, पहले सिंपल सा डिफिनीशन, इट इज द डिग्री ऑफ it is the measure of degree of hotness or coldness of a body। ठीक है, ये एक सिंपल सा डिफिनीशन हुआ कि टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है कि कोई बॉडी हॉट है या फिर कोल्ड है, ठीक है ना। यानी दो बॉडी अगर एक साथ रखे गए या उनके हीट एनर्जी को हमको कंपेयर करना है, ठीक है, या हम हीट एनर्जी से बेहतर टर्म होगा हॉटनेस या कोल्डनेस को कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़ अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर टेम्परेचर हमारा क्या मेजर करता है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारा टेम्परेचर कहने का मतलब होता है किसी बॉडी का एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, ठीक है। यानी इसका पोटेंशियल एनर्जी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब भी हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर बता रहे होते हैं तो हम ये बताते हैं कि उस बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है। यानी टेम्परेचर को हम लोग कह सकते हैं इट इज the average kinetic energy of molecules present in matter। यानी किसी भी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकाल दिया जाए, ठीक है, तो मॉलिक्यूल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगा उसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर डिफरेंस है, देखिए हीट एनर्जी और टेम्परेचर में। हीट एनर्जी में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम करते हैं, ठीक है। इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मैटर, बट टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मैटर, कि मॉलिक्यूल्स जितने प्रेजेंट हैं इस मैटर के अंदर उनके काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू है उसी को टेम्परेचर डिनोट करता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। आप जानते हैं केल्विन में इसको मेजर किया जाता है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और अदर यूनिट जो बहुत कॉमन यूज किया जाता है, अदर यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में अगर चेंज करना हो या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप हम यहाँ लिख देते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होगी उसमें 273 आप ऐड कर देंगे तो आपको केल्विन में वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या आपको डिग्री सेल्सियस में जानना है तो केल्विन में जो वैल्यू दी रहेगी उसमें से 273 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम लिखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल है, आप 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 प्लस 273 कर दीजिए, यानी आंसर आ गया आपका 293 केल्विन, ठीक है। इसी तरह से दूसरा आपका क्वेश्चन है कि 300 केल्विन दिया है और इसको आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है,
तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। केल्विन में से जो केल्विन में वैल्यू है उसमें से 273 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता चल जाएगी, यानी 300 माइनस 273, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 2 and 2 कैंसिल, सो यू विल गेट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा और यहाँ मैं डिस्कस करूँगा एक चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसमें हीट एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि सपोज करिए कि एक छोटा सा बॉल है, मेटेलिक बॉल है, मेटल का कोई एक छोटा सा बॉल है, एक बड़ा सा बॉल है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए, ये सपोजिशन है। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो सपोज कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये 5 पार्टिकल से बना हुआ है, समझने के लिए है। ठीक है, एक छोटा सा मेटेलिक बॉल है जिसमें केवल 5 पार्टिकल्स हैं और दूसरा एक बड़ा सा मेटेलिक बॉल है जिसमें 20 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए, अगर सपोज करिए कि इसको हीट एनर्जी सप्लाई किया गया दोनों को, ठीक है, और जितना हीट एनर्जी सप्लाई किया गया होगा वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यूज हो जाएगा, कुछ जो होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी हम लोग हीट एनर्जी किसी बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल्स के पास दो तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा, दूसरा पार्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना, अच्छा सपोज करिए कि इसके पास 100 इनको 200 जूल एनर्जी मिला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और इसको भी 200 जूल मिला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। दोनों को काइनेटिक एनर्जी के लिए 200 जूल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 200/5, यही एवरेज हो जाएगा ना, 200/5 एवरेज हो जाएगा 40 जूल। और यहाँ अगर हम लोग एवरेज निकालें, यहाँ 20 पार्टिकल्स है तो 200/20 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 10 जूल। दोनों को हमने सेम एनर्जी सप्लाई किया, लेकिन एवरेज देखिए बदल गया, यहाँ पर 40 जूल आ रहा है एवरेज, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 10 जूल आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि सेम एनर्जी देने पर दो बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है इट इज एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और एवरेज निकालते समय हमेशा हम लोग को जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। तो जिस बॉडी में ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उसका टेम्परेचर कम इंक्रीज हो पाएगा, और जिस बॉडी में मॉलिक्यूल्स कम है, पार्टिकल्स कम है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है कि जैसे क्लासरूम में अगर हम लोग को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, मिठाइयाँ बांटनी है, ठीक है, अब क्लास 10th का सेक्शन ए है जिसमें 40 स्टूडेंट हैं, और क्लास 10th का ही सेक्शन बी है जिसमें सिर्फ 10 बच्चे हैं, और दोनों क्लास में 40-40 मिठाइयाँ भेजी गई, तो पहले वाले सेक्शन में जहाँ 40 बच्चे थे सबको एक एक मिलेगा, एवरेज वही आएगा 40/40। लेकिन दूसरे क्लास में क्या होगा, वहाँ तो सिर्फ 10 बच्चे हैं उस सेक्शन में, सेक्शन बी में सिर्फ 10 बच्चे हैं, तो 40 मिठाइयाँ जब भेजी गई तो एवरेज कितना आएगा 40/10 यानी 4 आएगा, तो एक बच्चे को 4 मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सेम हीट एनर्जी सप्लाई करने पर दोनों ही बॉडी की सेम टेम्परेचर हो, है ना। जो बॉडी छोटा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जो बॉडी बड़ा है
उसका टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी है, हीट और टेम्परेचर के रिलेशनशिप को, तो आप बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर और हीट एनर्जी की बात करने वाले हैं, तो इसलिए बेसिक चीज़ों को समझ करके ही टॉपिक को आगे समझना आसान होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लें कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस में टेम्परेचर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ समझना होगा कि हीट एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हीट एनर्जी जब भी फ्लो होगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ इसका फ्लो होता है। ठीक है ना, जिस बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा होगी उस बॉडी से कम टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ फ्लो होगी। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया, भले ही ये बॉडी छोटा है लेकिन अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो जब अगर इनको कांटेक्ट में लाया जाएगा एक दूसरे के तो हीट एनर्जी का फ्लो इस बॉडी से बड़े वाले बॉडी की तरफ होगा। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, अब हॉटनेस और कोल्डनेस हम लोग के लिए कैसे डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए समर सीजन है, गर्मी का दिन है। ठीक है, अब हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर तो फिक्स होता है ना, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, एंड इट इज 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का बॉडी टेम्परेचर। ठीक, समर सीजन है तो बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट का फ्लो का डायरेक्शन मैंने अभी बताया कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, और हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, हम लोग होम्योथर्मिक है। ठीक है ना, चेंज नहीं होता है। अब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो बाहर से हीट एनर्जी हम लोग की बॉडी की तरफ फ्लो करने लगता है, इसी वजह से हम लोग को गर्मी लगता है। ठीक है ना, तो हम लोग को गर्मी लगने का कारण क्या है, बाहर से हीट रेडिएशन हमारे बॉडी में आ रहा है, इस वजह से हम लोग को गर्मी लगता है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हॉटनेस। इसीलिए हम लोग को वो बॉडी हॉट लगेगा जो गर्म है, हमसे ज़्यादा टेम्परेचर का है ना। जैसे कुकर में हम लोग खाना पका रहे हैं कि गलती से हमारा हाथ उससे टच हो जाए तो हम लोग को लगेगा कि वो गर्म है। क्यों, हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा, इसीलिए हीट एनर्जी कुकर के सरफेस से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होने लगता है, इसीलिए वो हम लोग को गर्म लगता है, वी फील हॉटनेस। ठीक है, अच्छा, दूसरा सिचुएशन है विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर तो वही है 37 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स है, और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना हो गया, मान लीजिए 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, बाहर का टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होने लगेगा, हमारे बॉडी से हीट एनर्जी बाहर जाने लगेगा और तब हम लोग कहते हैं कोल्डनेस। यानी जब भी आपको ठंडा लग रहा है कोई चीज तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी से हीट एनर्जी बाहर जा रहा है। ठीक है ना, जैसे हम लोग आइस क्यूब, बर्फ का एक टुकड़ा अगर अपने हाथ पर रख लें तो वो ठंडा लगेगा हमको। क्यों ठंडा लग रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी से हीट एनर्जी जा रहा है आइस में। ठीक है ना, तो इस वजह से हम लोग को वो ठंडा लग रहा है। या ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में हम लोग को ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि हमारे बॉडी से हीट एनर्जी बाहर की तरफ जाती है, इस वजह से हम लोग को कोल्डनेस फील होता है। ठीक है, तो ये हो गया हॉटनेस और कोल्डनेस। कपड़े भी जो डिजाइन किए गए हैं इसी चीज को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया। आप देखिए विंटर सीजन में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं ऊनी कपड़े होते हैं, है ना, कोट होगा, स्वेटर होगा, ऊनी कपड़े हैं और उनमें एयर ट्रैप हो जाता है, हवा उसमें ट्रैप हो जाता है ना, या फिर हम लोग ब्लैंकेट यूज करते हैं। ठीक है ना,
क्विल्ट यूज करते हैं, रजाइयाँ यूज करते हैं। तो रजाइयों में क्या होता है, जो कॉटन है उसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं, हवा उसमें ट्रैप हो जाता है। एंड एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अगर कोई आदमी सोया हुआ है, ठीक है, और ऊपर से जो है इसने रजाई लगाया है, तो रजाई में क्या है, कॉटन है और उसमें बहुत सारा एयर ट्रैप है। अब एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इस वजह से बॉडी से हीट एनर्जी बाहर नहीं जा पाएगा, और बाहर नहीं जा पाएगा तो ठंडी नहीं लगेगा। ठीक है, समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थिन क्लॉथ यूज करते हैं, पतले कपड़े यूज करते हैं, कॉटन के कपड़े यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि आप गर्मी के दिनों में हम लोग को क्या होगा, स्वेटिंग होगा। ठीक है, आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग को स्वेटिंग होता है, देखिए, तो हमारे बॉडी के सरफेस पर पानी आ जाता है, और वो पानी हमारे बॉडी के हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वेपराइज हो जाता है। ठीक है ना, इवापोरेट कहेंगे, वेपराइज तो नहीं कह सकते क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर वेपराइजेशन होता है, तो इवापोरेट हो जाता है वो। ठीक है ना, और जब वो इवापोरेट होगा तो हमारे बॉडी से हीट एनर्जी को ले करके वो अपना स्टेट चेंज करता है, यानी लिक्विड स्टेट में है वाटर जो स्वेटिंग से निकला है, तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा हमारे बॉडी के और वो इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है ना, और ऐसा होने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, और इसी वजह से वाटर बहुत ही एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। और स्वेटिंग अगर ना हो तो उससे हम लोग की तबीयत खराब हो सकती है, वी में फील इलनेस। ठीक है ना, फीवर हो सकता है। अगर स्वेटिंग ना हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं फीवर। ठीक है ना, हीट स्ट्रोक कहते हैं। वो हीट स्ट्रोक इसी वजह से होगी, अगर सफिशिएंट स्वेटिंग ना हो आपको तो हीट स्ट्रोक हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से जो कपड़े हम लोग पहनते हैं गर्मी के दिनों में वो पतले होते हैं ताकि पानी आसानी से उसके थ्रू इवापोरेट होते रहे, है ना। बहुत मोटे कपड़े अगर हम लोग गर्मी में पहन लेंगे तो आसानी से वाटर इवापोरेट नहीं हो पाएगा, तो गर्मी हम लोग को महसूस होगी और हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ जनरल चीज़ हैं हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड, है ना, बेसिक चीज़ है। चैप्टर को समझने में बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग बार बार टेम्परेचर, हीट जैसे टर्म्स बोलते रहेंगे, तो इनका कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना, अब आगे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और चीज़ है। देखिए, मुझे याद आ गया कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशनशिप है। आप जानते भी होंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.186 या 4.2 अप्रॉक्स में कह सकते हैं जूल। ठीक है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। और ये कैलोरी एक ट्रेडिशनल यूनिट है हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए, बहुत पुराने समय से यूज किया जाता है। ठीक है, 1 कैलोरी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यही चीज मैं कह रहा था। तो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 1 ग्राम प्योर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है ना। जैसे अगर हमने प्योर वाटर लिया और इसका मास कितना है, 1 ग्राम है, और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, मान लीजिए 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम लोग को जितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उसी अमाउंट को हम लोग कहते हैं 1 कैलोरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ये पूछा जाता है। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of pure water through 1 डिग्री सेल्सियस। कि 1 ग्राम प्योर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं 1 कैलोरी। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। जूल हमारा ऐसा यूनिट है, इसीलिए उसमें उसका रिलेशनशिप जानना जरूरी है। ठीक है, हालांकि कैलोरी
बहुत छोटा यूनिट है, इसीलिए जनरली किलो कैलोरी यूज किया जाता है। एंड 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। ये तो आप जानते हैं, कहीं भी किलो अगर लग जाएगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम। ठीक है, तो उसी तरह से 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं जैसे 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल है या 4.2 जूल्स अप्रॉक्सीमेटली, तो 1 किलो कैलोरी में क्या होगा? 1 किलो कैलोरी मतलब हो गया 1000 कैलोरी, मतलब 1000 इंटू 4.2, क्योंकि एक कैलोरी में 4.2 जूल है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 4200 यानी 4200 जूल्स। ठीक है, तो कैलोरी का डिफिनीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल यूनिट है, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में हम लोग कैलोरी में हीट एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो ठीक है, इतने सारे चीज़ जो हैं वो बेसिक टर्म्स हो गए जो चैप्टर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।